are an entrepreneur? This is a very big, I can say, the important question and very basic question. Who is an entrepreneur? The person who started a business or runs a business and takes the bear of bear the risk of the businesses come in the startups and all different, right? Those persons, those proprietors are known as entrepreneur. So basically, I guess you all knows the meaning of entrepreneur. So entrepreneur, who are they? They are those people who initiate some business, who start the business. Okay? Who is the, we can say, who's the founder of the business, and why they are doing so? Because for their self-satisfaction, for recognition, for the profit motive. And what is the reason behind becoming entrepreneurs? That reason can vary. Reason जो है वो बदल सकता है, change हो सकता है. Some people are very much passionate toward the something like some hobbies. Some people are very much intelligent in some of the aspect. If we'll take the example of Byju's, that was started by Baiju Ravindran, and how the story was that, like, his passion, he was earlier an engineer. After that, his passion is toward teaching, and how he started the whole company Byju's. So we can take the example of it. So the reasons behind becoming an entrepreneur, that can be vary. ठीक है, वो change हो सकता है, बदल सकता है. But yes, the entrepreneurs are those people who are the risk taker, who have in their mind, they have some reason to become an entrepreneur. ठीक है, the craving toward the entrepreneurship help them to become an entrepreneur. Now the question is, what is the meaning of entrepreneurship? Raise your hand. What is the meaning of entrepreneurship? So what is the meaning of an entrepreneurship? Entrepreneurship का मतलब क्या होता है? What is the meaning of entrepreneurship? Raise your hand. Okay. Yes, Naman. मैम दैट एबिलिटी, मैम एक एबिलिटी है जो एक एंटरप्रेन्योर को एंटरप्रेन्योर बनाती है. मतलब एक खास ट्रेट्स जो एंटरप्रेन्योर को बिजनेस एस्टैब्लिश करने में मदद करे. Yes, we can say that, but the entrepreneurship is basically, it is a process of establishing a business. ठीक है, एक process जो continue चलता है. ठीक है, बिजनेस को शुरू करने के टाइम पे, शुरू आपने प्लान बनाया, उसके बाद उसको फाइनली आपने इंप्लीमेंट किया, एक बिजनेस को एस्टैब्लिश किया, उसके लिए आपको स्केल, फंड, जो भी चीजें, जो भी प्रोसीजर करना पड़ा, दैट इज बेसिकली नोन एज एंटरप्रेन्योरशिप. द फेज, एक फेज जब आप एक बिजनेस को स्टैब्लिश करते हैं, द फेज, द प्रोसीजर, द सिस्टम विच यू आर फॉलोइंग फॉर एस्टैब्लिशिंग अ बिजनेस, दैट इज एंटरप्रेन्योरशिप. ठीक है, सो एंटरप्रेन्योर्स कौन है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, दैट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, राइट? दैट इज क्लियर, दैट इज क्लियर. With the reason, what is the meaning of, you all are able to see me? No, ma'am. We were talking about the entrepreneurship and entrepreneurs, right? So I'm sharing the screen.
See, in today's class, what we are going to understand about the basic of the entrepreneurs, and we are going to understand about the story. Okay? And I am going to elaborate हर एक class में एक story होगा. So what is the meaning of entrepreneurship is clear. Now, what are the characteristics of a successful entrepreneur? And I guess this point is already clear to all of you. सारे point जितने भी हैं वो सब लगभग clear ही होंगे आप लोगों को. Yes. So the first one is creativity. So if we'll start with any of the business, if there is no creativity, do you think it is going to run for the long time? आप लोगों को लगता है कि लॉन्ग टाइम तक वो चलेगा, या कॉम्पिटिटर्स जो हैं वो आपके बिजनेस को वर्सली इफेक्ट नहीं करेंगे? सो क्रिएटिविटी इज समथिंग व्हेन यू आर बेसिकली प्रोवाइडिंग समथिंग डिफरेंट to the society. If we'll talk about the chayos, that the experiment with the chai, the creativity with the Nitin Saluja he have, basically that shows the creativity. Because of that reason, now he is one of the successful entrepreneur, and he have multiple chains around. I can say that it is around 200 to 300 the store he have right now. So next one, first point is the creativity. Like the person required to very much creative if he want to become an entrepreneur. Okay, something different, and something different you can do. The creativity is required for that. Professionalism, it means that you are that person who is not mixing your personal life with your professional life. You are that person who is basically following the procedures, who is following the rules, who is able to understand the बोल सकते हैं advantage of protocols, right? The professional person is always at time. He or she is able to understand the meaning of discipline. So professionalism होना चाहिए. He is able to tackle the things, whatever is going on in the office or the professional area, right? And he's never basically mixing his personal life with his professional life. So professionalism, this is known as professionalism. The next one is risk taking. If I'm talking about it, definitely I have no idea if I'll start the business that is going to run for the long time or not. Okay, if I'll talk to the entrepreneurship successful rate की बात करूं तो earlier it was 6%, and after COVID it is basically 3% only. So there is a lot of risk which is situated. There is a financial risk, and that will basically affect you in the worst way. How? That if I am investing 50 lakh rupees in a company, and that company is going to decline, or that company is going to dissolve after few years, the amount basically I have to pay to the bank and the other angel investors, that will be the big problem for me, right? So risk taking is always there when you are an entrepreneur, because you have no idea that your business is going to run for the long time or not. But there is one line which we need to keep in our mind if we are starting a new business, that no risk, no gain. And that is the truth, right? Even we are basically purchasing the shares, we are basically in that situation only where we are taking risk. But taking risk of the shares, if we are spending 5,000 rupees, only 5,000 rupees we are going to basically lost, right? We are going to lose only 5,000 rupees. But in the case of the business, if you are basically spending the rupees in lakhs and crores, if anything worse happened, then you are going to lose all those money. Even you have to pay the loan amount to the bank as well. So risk is always involved, and the person is the risk taker. ठीक है, एंड दैट पर्सन, कोई भी अगर एंटरप्रेन्योर है तो एक बेटर जॉब को छोड़ करके, एक बेटर लाइफ को छोड़ करके एक एंटरप्रेन्योर बनता है, तो वो भी एक रिस्क में इंक्लूडेड है. ठीक है, तो पर्सनल रिस्क भी वहां बहुत ज्यादा आपका एसोसिएटेड है. नेक्स्ट वन इज अ पैशन. पैशन इज समथिंग व्हाट यू लव टू डू, राइट? Someone loves to make painting, some person loves to love music, some person have interest in dance. So every people have some interest area, right? But the passion is something what you love to do and what you achieve. What do you want to achieve? If the person is a very good singer, maybe he or she is a passionate toward become a singer.
ठीक है, तो पैशन इज अ, बोल सकते हैं इट इज अ compulsive thing which basically force you to achieve that goal, to become an entrepreneur. So at least you have passion, that what you love to do, and if you are happy to doing that thing, you will never think about the time. आप टाइम को नहीं देखोगे. अब जैसे ऑफिस में कई बार क्या होता है कि जब कोई पर्सन है ऑफिस में काम कर रहा, फॉर्मेलिटी कर रहा है, तो अगर उसका 9 to 6 टाइम है तो 9 to 6 के बाद वो 6 के बाद 1 मिनट भी वो पर्सन रुकना नहीं चाहेगा. बट द सेम थिंग इज नॉट विथ पैशन. इफ यू लव टू वर्क, आपको काम करना अच्छा लगता है, तो मे बी इट इज पॉसिबिलिटी दैट यू विल बी इन द ऑफिस फॉर द लॉन्ग टाइम. 10 बजे तक भी आप काम कर रहे हो और आपको थकान भी नहीं हो रहा, बिकॉज यू आर पैशनेट टुवर्ड दैट वर्क. सो पैशन इज रिक्वायर्ड इन एंटरप्रेन्योर. I guess all these points are clear to all of you. ये जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं सबको समझ में आ रहा है? Clear है? Everyone? Yes, ma'am. Okay. So the next one is planning. So why planning is required? If I will tell you one thing that अगर हमें कहीं travel भी करने जाना है, अगर अभी आप लोग का एग्जाम्पल ले लेती हूँ, अभी आप लोगों ने इंटर्नशिप किया, तो इंटर्नशिप करने से पहले कुछ प्लान तो किया होगा ना कि कहाँ से इंटर्नशिप करना है, कौन बेटर होगा, ठीक है, कौन मुझे लॉन्ग टर्म में बेनिफिट देगा, कौन मेरी एरिया, मेरे एजुकेशन के एरिया से रिलेटेड है. तो इन सारी चीजों को कहीं ना कहीं आपने एनालाइज किया होगा. सो द प्लानिंग इज समथिंग विच इज हेल्प यू, दैट इज मेकिंग अ ब्रिज दैट वेयर यू आर एंड वेयर यू वांट टू गो. मतलब आप अभी कहाँ हैं और आप कहाँ जाना चाहते हैं. It is basically related with the futuristic thing कि आप आगे का कितना सोच सकते हो. Planning is involved in every area. It is not about 1 or 2 areas. If we are talking about to meet the people, अगर हम अपने दोस्तों से भी मिलने चाहते हैं तो वहां पर भी हम प्लान बना के जाते हैं कि चलो भाई कल हम लोग वहां पर मिलते हैं, है ना. So planning is required in every phases. Planning will tell you that what to do, when to do, how to do. So all these questions, ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको प्लानिंग के थ्रू मिलेगा. ठीक है. सो प्लानिंग करना बहुत जरूरी है जब आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, और एंटरप्रेन्योर की यही खासियत है कि वो प्लान करके कोई भी चीज को करेगा. प्लानिंग से आपका इम्प्लीमेंटेशन इजी हो जाता है कि आप कैसे चीजों को इम्प्लीमेंट करें, प्रोसीजर क्या क्या होगा. ठीक है. और प्लानिंग में सिर्फ आप एक एरिया को इंक्लूड नहीं करोगे कि आप बिजनेस कौन सा शुरू करने वाले हो. यू आर नॉट गोइंग टू ओनली इन्वॉल्व दैट एरिया कि आपने बिजनेस क्या है आपका. You are going to basically include every aspect, like you are going to include human resource aspect, you are going to include marketing aspect, you are going to include financial aspect, you are going to include the product description. ठीक है. You are going to include the description, the profile of your business. You are going to include the executive summary. So many things you need to include when you are doing the business plan, right? And one more thing I just want to tell you that in business plan, जब भी आप business plan को बनाते हैं तो उस business plan को आप written form में बनाते हैं. How you are making that business plan? You are making it in the written form because that is helpful or that will work like a evidence. वो एक evidence की तरह काम करेगा कि after all आपका business कैसा होने वाला है, कैसा business create होने वाला है, how it is going to be ready. Yes, Sonam? Excuse me मैम, हम रोशन वेटिंग में डिस्कनेक्ट हो गया उसका. ओके. चलिए. So this is basically the characteristics of the successful entrepreneur. So planning is clear to all of you. Planning is clear. प्लानिंग क्या होता है सबको समझ में आया. प्लानिंग इज समथिंग विच इज रिलेटेड विद द फ्यूचरिस्टिक थिंग. ठीक है. एंड आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट प्लानिंग इज नॉट वन डे गेम. ये एक दिन का खेल नहीं है. इट इज गोइंग टू बी हैपन ऑल द टाइम इन द बिजनेस. हर टाइम आपको कुछ ना कुछ प्लानिंग करना पड़ेगा, या तो शॉर्ट टर्म के लिए या तो लॉन्ग टर्म के लिए. सो प्लानिंग करना आना चाहिए एक एंटरप्रेन्योर को, और वो एक गुड प्लानर होना चाहिए. बिफोर इम्प्लीमेंटेशन you just need to do the planning. जस्ट एग्जाम्पल में ले लो कि अगर जैसे मान लो कि आपने ऐसे डिसाइड किया कुछ दोस्तों ने कि चलो मनाली घूमने चलते हैं. ठीक है. अब you all decided in a one day and you just try to implement within 1 hour. आप सोचो 1 घंटे में हम लोग ट्रेन ले ले और चले जाए. Is it possible? Is it possible?
नो. एंड आइदर इफ यू विल टेक, हो सकता है 5 घंटे का भी गैप लेते हो, सो इट माइट बी पॉसिबल कि उस हड़बड़ी में आपकी बहुत सारी चीजें छूट जाएं. अगर आप कुछ ऑफिस में काम करो तो आपके ऑफिस के आइटम्स छूट जाएं, लैपटॉप छूट जाए, कुछ ना कुछ क्योस होगा. ठीक है. वाई दिस इज हैपनिंग? बिकॉज इफ द प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का जो गैप है अगर वो बहुत शॉर्ट हो जाता है तो आपका इम्प्लीमेंटेशन कभी भी सक्सेसफुल नहीं होता है. तो द पर्सन, द एंटरप्रेन्योर शुड have this quality that he is a good planner. Clear हो गई बात? समझ में आया everyone? Okay. Now the next point is knowledge. Okay. Can anyone tell me that what is the meaning of knowledge? Knowledge का मतलब मैम नॉलेज में हिंदी में तो ज्ञान कहेंगे, बट जिस फील्ड में है उस फील्ड में उसको एक्सपर्टीज होना चाहिए विथ मैनेजरियल एंड टेक्निकल स्किल्स. Very good, very good. So knowledge is basically related that what information, what ideas you have related with your field. ठीक है. If you want to make, if you want to start a बोल सकते हैं industry where you are basically engaged in making bottles, for example. So in that you have idea about that what kind of bottle I have to make, what things which is required for this. And I can tell you one thing, that every person have no knowledge in every areas, right? There are some people jinko technical knowledge hai, some people they have the marketing knowledge, some people they have the financial knowledge, right? So knowledge होना चाहिए एंटरप्रेन्योर को, चाहे वो जो भी बिजनेस शुरू कर रहा है उस बिजनेस के बारे में उनको पता होना चाहिए कि कौन सा बिजनेस है, कैसे शुरू करें. ऐसा नहीं है बिल्कुल ब्लैंक माइंड के साथ इफ यू विल स्टार्ट बिजनेस दैट इज गोइंग टू वर्क. नो, you have a sound knowledge. If you are starting a software company, if you are establishing a software company, you have knowledge about the software. If you are starting a digital marketing company, you have knowledge about the digital market, right? You have information, you have experience, you have expertise in that particular area. Clear हो गई बात? समझ में आया सबको? Okay. Next one is social skill. That person have a knowledge about the society as well, like that what consumers we have in the surrounding, right? How we are going to contribute to the society, everything. So all these things comes under the social skill. Now next one is open-mindedness toward learning and people and even failure. See, if I'm investing 50 lakh rupees in a business, and it might be possible after 1 year that business is dissolved. Do you think that it is easy to take for the people? किसी का 50 लाख रुपए डूब जाएगा तो लग रहा है कि बहुत आसान है इस चीज को सह पाना, इस चीज को समझ पाना. Do you think that? Is it that much easy? क्या लगता है आप लोगों को? No ma'am. Obviously no. No ma'am. And I am just telling you one fact. आज के टाइम पे तो 5,000 भी डूब जाता तो कितना बुरा लगता है. True. तो यहाँ पर ये टर्म इसलिए यूज किया गया है कि अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं तो आपको फेलियर को फेस करना आना चाहिए. ठीक है. अगर आपका कोई भी बिजनेस मॉडल फेल हो गया इसका मतलब ये नहीं कि आपका आगे चलने वाला भी बिजनेस मॉडल फेल ही होगा. नो, यू आर ऑलवेज रिमेंबर दैट यू आर इन द लर्निंग स्टेज. ठीक है. जहां पर आप एक नए बिजनेस के साथ आ रहे हो, आप बिल्कुल मार्केट में नए हो, तो कई चीजें हो सकती है जो आप लैक कर सकते हो. देयर we can say that there are so many problems related with the startups. Yes, obviously. So always remember that you are in the learning phase. Never think that you are the failure, you are not able to achieve anything in your life. Never depress yourself, but always in the progressive stage. हमेशा अपने आप को समझिए कि आप नई चीजों को सीखोगे. फेलियर से भी चीजों को लर्न करो, नई नई चीजों को लर्न करो. जो गलतियां आपने पास्ट में की, whatever things, whatever wrong things, whatever you did in the past, don't try to repeat it. But what you have to do, just learn it something better from it, and just establish a better business again, right? So you have that kind of attitude. वो आपका attitude होना चाहिए. फेलियर से सीखिए नई चीजों को. ठीक है. नेक्स्ट वन इज एम्पैथी. इफ यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ बिजनेस, फॉर whom you are going to start a business? Obviously for the consumer.
कंज्यूमर्स के लिए ही आप कहीं ना कहीं बिजनेस को शुरू कर रहे हैं. सो यू हैव दैट सिचुएशन ऑफ एम्पैथी वेयर यू आर कंसर्न टुवर्ड द पीपल, यू आर कंसर्न टुवर्ड द सोसाइटी, यू आर कंसर्न टुवर्ड द एम्प्लॉइज. सो दैट एम्पैथी यू हैव. ठीक है. The next one is the customer is everything. If you are basically dealing with the service or any goods, who you are going to give the priority? Obviously customer. And nowadays we are basically toward the holistic marketing concept. तो यहाँ पर आपको आपके लिए जो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है कस्टमर. सो ऑलवेज रिमेंबर whatever product you are making, just make it according to the customer oriented. Customer oriented product को बनाइए कस्टमर के हिसाब से, कस्टमर के डिमांड के से, कस्टमर की नीड के हिसाब से. That is going to make the customer base. वो आपके कस्टमर बेस को बनाएगा. So these are the characteristics of the successful entrepreneurs. I guess this point is clear to all of you. सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया? Yes, ma'am. Okay. So there are the point is basically totally elaborated, but I elaborated by own. मैंने आपको बता ही दिया था कि social skill is related with where we are basically making the relationship building. We are basically engaged with the employees. Hiring, how we are going to do the hiring work, and your team strategy formulation. Always remember one thing that in the entrepreneurship, what basically work, that is the team building. Always try to coordinate with the people, and whoever is working in your business, try to never make them feel that they are the only the employees, but just behave with them like that they are the part of that business. Never tell them that you are only the employees and your work is over after the certain time. ठीक है. ये चीज उनको मत कभी फील कराइए कि आप जो है आप एक कंपनी में बस काम कर रहे हैं. So there are so many types of entrepreneurship, and I guess most of them I already discussed in the class. Do you want to repeat it once again, or that is totally okay if I'll leave this? मैम टाइप्स नहीं हुआ था. ओके, टाइप्स हुआ था, लेकिन अगर आप लोग को करना है तो मैं इतना नहीं हुआ था. ओके, चलिए ठीक है, तो टाइप्स ही कर लेते हैं हम लोग. सो टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में अगर हम बात करें तो देखो, एंटरप्रेन्योर्स वो लोग होते हैं जो वेंचर को स्टैब्लिश करते हैं, अपनी इनोवेशन को, क्रिएटिविटी को यूज करते हैं. दे हैव अ कैपेबल टू टेकिंग रिस्क, दे हैव अ पोसेस द स्पेसिफिक स्किल, दे हैव प्रॉपर कम्युनिकेशन सिस्टम, दे हैव लीडरशिप क्वालिटी, proper business management, technical skill. So he is a diversified way में अगर देखा जाए तो उनके पास प्रॉपर एक डाइवर्सिफिकेशन आपको दिखेगा. हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ नॉलेज होता है एक एंटरप्रेन्योर को. सो यहाँ पर जब हम टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की बात करें तो सबसे पहला जो टाइप है दैट इज स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप. So small business entrepreneurship, its name is even suggesting, जो small business है वो represent करेगा majority of the Indian entrepreneurial venture. अगर आप देख सकते हो जो छोटे मोटे दुकान वाले होते हैं, they are the part of the small business entrepreneurship. ठीक है. They have a lack of innovative factor, but basically they establish the business for support to their families, for survival reason. मतलब जो स्मॉल बिजनेस रिप्रेजेंट करते हैं, आप देख रहे होंगे कि इंडिया में बहुत ज्यादा आपको छोटे छोटे बिजनेस वाले पर्सन दिखेंगे, जैसे गोलगप्पे बेचने वाले, ठीक है, वेंडर्स आपको देखेंगे, स्मॉल जनरल स्टोर वाले आपको दिखेंगे. तो जो पीपल हैं जो स्टैब्लिश करते हैं स्मॉल बिजनेस को, ठीक है, लेकिन उनका मेन रीजन कुछ सेल्फ सेटिस्फैक्शन, सोसाइटी में रिकॉग्निशन, ऐसा कुछ नहीं होता है. उनका मेन रीजन होता है अपने फैमिली को सपोर्ट करना, प्रॉफिट अर्न करना, ताकि उनका घर चल पाए, लाइवलीहुड उनका सपोर्ट हो पाए. ठीक है. तो ये जो स्मॉल बिजनेस वाले होंगे, इनके पास बहुत ज्यादा इनोवेटिव फैक्टर नहीं होता है. दे आर बेसिकली स्टार्टिंग विद द वेरी नॉर्मल थिंग. कुछ भी चीजों से वो शुरू करेंगे, इनके पास बहुत ज्यादा इनोवेशन नहीं होगा, और इनके पास बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कैपिटल भी नहीं होगा. बहुत कम कैपिटल के साथ ये शुरुआत करते हैं. इनका अगर लोन भी अगर ये लेते हैं ना, तो ये आपके फ्रेंड से या फिर नोन पीपल से, ये फ्रेंड मतलब ऐसे लोगों से ये लोन भी लेंगे. इनको बहुत ज्यादा नॉलेज भी नहीं होगा कि कितनी सारी लोन की फैसिलिटीज गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइडेड है. सो दीज पीपल आर वेरी लेस नॉलेजेबल अबाउट द एक्स्ट्रा थिंग्स व्हाट एवर अवेलेबल इन द कंट्री. ठीक है. एंड हु आर दे? बेसिकली
एंड इनके जो एम्प्लॉइज भी होंगे ना वो ऐसे ही होंगे जैसे जो जान पहचान वाले लोगों को ये रख लेंगे अपने हेल्पिंग हैंड की तरह। सो कौन कौन हो सकते हैं? जैसे लोकल हेयर ड्रेसर्स हो जाएंगे, ग्रोसरी शॉप वाले हो जाएंगे, मिल्क बूथ्स वाले, प्लम्बर, कारपेंटर, स्मॉल बुटीक्स। सो ऑल दीज आर द पार्ट ऑफ द स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड ऑन दैट जितने भी आप लोग, आपको तो पता ही है कि हमारे इंडिया का रिटेल कितना है, 94% अभी भी अनऑर्गेनाइज चल रहा है ना। तो यहाँ इंडिया में स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप का सीन बहुत ज्यादा एक्सट्रीम। ठीक है। तो आई गेस स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप सिस्टम क्या है, यहाँ पर जो भी बिजनेस शुरुआत हो रही है एंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, कोई भी बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इनोवेशन नहीं है, कोई क्रिएटिविटी नहीं है। मेन रीजन है प्रॉफिट अर्न करें, अपने फैमिली को चलाना इनका मेन रीजन है, मॉडेस्ट लाइफस्टाइल के साथ, नॉर्मल लाइफस्टाइल के साथ। और इनके पास जो पैसे वैसे की भी बात की जाए तो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम इनके पास मनी का सपोर्ट नहीं होगा। इनका जो मनी का जो सपोर्ट मिलेगा वो इनके फैमिली और नोन से मिलेगा। ये एम्प्लॉइज में भी किसको रखेंगे? उन्हीं लोगों को रखेंगे जिनसे इनकी जान पहचान है। ठीक है। तो कोई प्रॉपर इनका एक बिग स्टार्टअप्स की तरह इनका सिनारियो नहीं होगा। और वो कौन हो सकते हैं? आई ऑलरेडी टोल्ड यू। सो आई गेस दिस स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Small business entrepreneurship is clear to all of you? Yes, ma'am. Okay. Now the next one is that is large company enterprises. Just wait for a minute. बच्चों को एक चीज इन्फॉर्म कर दीजिएगा क्लास में कि if they are thinking that this is a add-on, तो I'll come after half an hour. So this is not going to happen in my class. I'm not going to allow any student if he or she is thinking that I'll come at 3:30, 3:45 only for the attendance purpose. It is not going to work in my class. सब बच्चों को बता दीजिएगा, नहीं करना मत करो क्लास. Okay. Next one is large company entrepreneurship. So companies with a finite life cycle, they have large company entrepreneurship. Some of the startups are even registered under the Companies Act 2013. These ये जो companies होते हैं इनमें बहुत ज्यादा innovative होते हैं. इनके पास एक प्रोफेशनल टीम होता है, एक्सपर्टीज का पूरा टीम होगा. इनका जो कंपनी होगा वो इनके पास प्रॉपर एग्जीक्यूटिव टीम होगा, प्रॉपर एम्प्लॉइज की हायरिंग होगी. जो प्रोडक्ट यहाँ पर ये ऑफर करेंगे, दे हैव मल्टीपल प्रोडक्ट और दे हैव अ क्वालिटेटिव प्रोडक्ट व्हाट एवर दे आर ऑफरिंग. ठीक है. और इनका जो बिजनेस सपोर्ट किया जाएगा, इस सिस्टम में जो बिजनेस होगा ये कहीं ना कहीं स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप के सपोर्ट से चलेगा. ठीक है. यानी स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेन्योरशिप विटनेसिंग द एक्सेलरेटेड ग्रोथ बिकम द लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप इन नो टाइम. यहाँ ये जो लाइन है इसके अलावा मैंने ये पॉइंट बताया है कि इनको सपोर्ट कौन करेगा? स्मॉल एंटरप्रेन्योर करेगा. और कई बार ये जो लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं ये शुरुआत इनकी बहुत छोटे कंपनी से होती है. अगर आप लोगों ने कभी भी हल्दीराम की स्टोरी पढ़ी होगी तो तुम लोगों को मैं बता दूं कि दैट हल्दीराम स्टोरी वाज स्टार्टेड विद अ वेरी स्मॉल शॉप स्वीट शॉप के साथ वो शुरू हुआ था. कहां पर? बीकानेर में, राजस्थान में. एंड नाउ वी आर एबल टू सी दैट द हल्दीराम इज इन द इंटरनेशनल मार्केट एज वेल. So here it is basically saying that अगर आपकी जो प्रोडक्ट बहुत हाईली इनोवेटिव प्रोडक्ट है और कॉम्पिटिटर से बेटर प्रोडक्ट अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो नो टाइम, मतलब बहुत कम समय में ही आप एक स्मॉल एंटरप्रेन्योर से लार्ज एंटरप्रेन्योर में कन्वर्ट हो सकते हैं. सो लार्ज कंपनी एंटरप्रेन्योरशिप में क्या होगा? आपके पास इनोवेशन हाई रहेगा. कंपनी की तरह वो रजिस्टर्ड भी हो सकता है कि वो कंपनी रजिस्टर्ड हो, जैसे हल्दीराम इज रजिस्टर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है. सो यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन भी हो सकता है, कंपनी की तरह चलेगा. यहाँ पूरा एग्जीक्यूटिव टीम होगा, इनके पास पूरा रिसर्च टीम होगा. ठीक है. और कई बार बहुत छोटी कंपनी जो होती है अपने सक्सेस रेट की वजह से लार्ज कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है. So I guess large company entrepreneurship is clear to all of you. That is clear to all of you. Yes, Naman. मैम ये सी लेवल क्या है? इसमें लेवल भी होते हैं क्या? It is a core level. It is सामने? a core level basically. Just wait for अच्छा, a minute. core level. Yes, it is a core level. It will start with the basic product. Let me tell you that there is a concept of TPC. Total product concept कहते हैं. In the total product concept there is a 5 level, right? So first level जिसको हम कहते हैं core. ठीक है, core product.
Then there is a basic or generic product, right? And after that there is more step, augmented, potential. So with increasing the features of the product, the levels are increasing. The first one is core, the second one is basic, or we can say Basic. generic. The third one, that is expected product. The fourth one is augmented, and the last one is potential. आप लोगों ने marketing management में ये पढ़ा होगा, I guess. Segmentation. हाँ. Yes, ma'am. So this TPC and this theory is given by the Theodore Levitt के द्वारा. He is the Harvard Business School के ये professor हैं. इनके द्वारा ये theory given था. तो यहाँ जो C level यहाँ पर है ना large, अच्छा ये एग्जीक्यूटिव टीम के लिए है, तो सी लेवल इट रिलेटेड विद द कॉर्पोरेट. एंड यहाँ जो कोर की बात कर रहे हैं ना, आई थॉट इट इज अ कोर प्रोडक्ट, वेरिएंट अराउंड देयर कोर प्रोडक्ट. इस कॉन्सेप्ट में मैंने बताया कि कई बार कुछ छोटे से बिल्कुल कोर प्रोडक्ट के साथ कंपनी शुरू करती है इस प्रोडक्ट को बेचना, और धीरे धीरे उसको पोटेंशियल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देती है. मोबाइल फोन तो बहुत बेटर एग्जाम्पल है. जैसे मोबाइल फोन जब आया था तो एंटीना के साथ आया था, याद है? Yes, ma'am. और उसके बाद एंटीना फ्लिप में कन्वर्ट हुआ. उसके बाद थोड़ा सा वो ब्रॉड वे में कीपैड आया. उसके बाद फिर वो आपका टच में आया, तो टच में 100% टच नहीं था. उसके बाद फिर वो बेटर टेक्नोलॉजी के साथ आज आप देख सकते हो कि मोबाइल फोन नहीं, इट इज अ टोटली वॉलेट, इट इज अ यूजफुल थिंग फॉर अस, राइट? सो बेसिकली इसको कहते हैं कोर प्रोडक्ट. कोर प्रोडक्ट मतलब बेसिक से शुरू होता है और बिल्कुल ऑगमेंट आपका पोटेंशियल तक जाता है. तो यहाँ सी लेवल एग्जीक्यूटिव रिलेटेड विद द कॉर्पोरेट, दे हैव अ वेरी एजुकेटेड एग्जीक्यूटिव टीम, दे हैव एक्सपीरियंस एंड द नॉलेजेबल टीम. तो इसके लिए कह रहे हैं सी लेवल एग्जीक्यूटिव टीम. क्लियर हो गई नमन? बात समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, so let's move toward the next type. This one is the last type which I am elaborating in the class, because after that we are going to understand the success story. Okay, so next one is a scalable startup entrepreneurship. What is the meaning of scalable startup entrepreneurship? In this type of entrepreneurship, this business is started with a unique idea that can bring a change. मतलब एक ऐसा आइडिया के साथ, जैसे हम ले सकते हैं एग्जांपल में आपका ई रिक्शा. दिस इज अ स्केलेबल स्टार्टअप कहेंगे, जो बिल्कुल ही चेंज लेकर आ गया पूरे इन्वायरमेंट में. अगर इंडिया में बात की जाए तो हमें भी पता है कि पॉल्यूशन कितना ज्यादा है. सो द इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल, जो ई रिक्शा जो आया, इट इज समथिंग विच मेक द चेंज दैट हेल्प फॉर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन. ठीक है, तो एक नए और यूनिक आइडिया के साथ जब आप कोई बिजनेस प्लान को लॉन्च करते हो, और आप बेसिकली वो क्यों करते हो, क्योंकि आप वो चीज मार्केट में मिस कर रहे होते हो. जैसे मैं एग्जांपल में बताती हूँ कि अर्लियर व्हेन आई वाज यूजिंग द पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आई वाज थिंकिंग दैट देयर आर सो मेनी प्रॉब्लम्स रिलेटेड विद द एनवायरनमेंट. एक हर एक व्हीकल से पॉल्यूशन एमिट हो रहा है. ठीक है, तो आई वॉज बेसिकली फेसिंग दैट, आई वॉज बेसिकली अंडरस्टैंडिंग और रिकॉग्नाइजिंग दैट प्रॉब्लम. सो फ्रॉम दैट प्रॉब्लम और फ्रॉम दैट मिसिंग पार्ट इन द market, I am able to give the solution with the unique idea. So this is scalable startup entrepreneurship. When we are able to recognize that what is missing in the market, what is the problem in the market, and with the idea I am creating a solution. ठीक है, so this is known as scalable startup entrepreneurship. And the people here, जिसको भी आप hire करोगे, that people are the specialized employees because they seek for the rapid expansion and the high returns. तो इस टाइप के जो entrepreneurship system में होंगे, उनको high return भी चाहिए होगा, rapid expansion भी चाहिए होगा. इसीलिए आप human resource के साथ थोड़ा सा भी compromise नहीं करेंगे. आप बेटर और स्पेशलाइज्ड एम्प्लॉइज को हायर करेंगे, और ऐसे केस में आपको जो फंडिंग मिलेगा दैट विल बी फ्रॉम द वेंचर कैपिटलिस्ट, यानी कि एंजल इन्वेस्टर्स, और बहुत सारे आपको ऐसे इन्वेस्टर्स मिलेंगे जिनके थ्रू आप अपने फंड को लगा सकते हो अपने बिजनेस में. सो स्केलेबल स्टार्टअप एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब यही है कि जहां पर आप बिजनेस को स्टार्ट करो विथ अ यूनिक आइडिया, एंड दैट यूनिक आइडिया इज बेसिकली कम from the problem or the missing part of the market, and that idea is becoming the solution for the consumers and for the people. Clear हो गई बात? समझ में आया? Scalable startup entrepreneurship is clear to all of you. I just want to know that what about the other students? No one is speaking, no one is saying. You all are able to understand the things or not? समझ में आया सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay.
So this is the 3 type of entrepreneurship which we discussed. Let us start with a success story. In every class we are going to do that. So these 3 points are clear. There are other points as well. We are able to see the international, social, entrepreneurship, environmental. There are so many other types of entrepreneurship which we are going to complete in the next class. Okay. So let's start with the today's story, that is about the Nykaa. And I guess Sonam's group was made the presentation on this topic, Nykaa, right? नायका के ऊपर आप लोगों ने मतलब प्रेजेंटेशन याद है आप लोग? कुछ अप्रैल के अराउंड हम लोगों ने प्रेजेंटेशन का काम किया था, याद है? जब फर्स्ट टाइम पे लॉकडाउन लगा था 4th सेमेस्टर में. यस मैम, याद है ना? ठीक है, चलो तो स्टोरी शुरू करते हैं. सो डोंट लुक अप ऑन द स्क्रीन बट लिसन वर्ड्स व्हाट आई एम सेइंग. So Falguni Nayar, she is the CEO, Chief Executive Officer of Nykaa, and I guess everyone heard about this company. इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में लगभग सब लोगों ने सुना होगा. सुना है सबने? खासकर लड़कियां. आई एम जस्ट आस्किंग फ्रॉम यू ऑल. नायका सुना है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना? ओके. सो नायका की जो स्टोरी है, हाउ इट इज स्टार्टेड, तो यहाँ पर इन्होंने फाल्गुनी नायर, शी सेड वन लाइन, थिंक बिग बट स्टार्ट स्मॉल. लाइक व्हाटएवर यू वांट टू अचीव, दैट शुड बी लाइक दिस. But if you will start implementing it, start it from the small. Slowly or gradually, we are able to achieve our bigger goal. So Falguni Nayar jo hai, she is earlier doing job and she was basically her educational background is like she graduated, she did post graduation from IIM. So Indian Institute of Management जो एक renowned institute है इंडिया का, वहां से इन्होंने अपनी पढ़ाई की. And earlier she was doing work as a managing director at Kotak Mahindra Capital. कोटक महिंद्रा कैपिटल में एक मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में ये काम भी कर रही थी. ठीक है. Do you think that if I am even established in my career, is it okay if I'll just quit it and I'll start the business? मतलब मुझे तो सोच के भी डर लगता है कि नहीं, मेरे से तो नहीं होगा. ठीक है. बट अगर यही चीज फाल्गुनी नायर ने सोचा होता तो हमें लगता है कि आप लोगों को लगता है कि नायका हमें मिला होता, नायका दिस प्लेटफॉर्म, दिस फैशन रिलेटेड प्लेटफॉर्म हमें मिला होता? बिल्कुल भी नहीं. ठीक है. So she was basically doing job in Kotak Mahindra और 1-2 साल से नहीं 20 सालों से she was doing job in that particular company. ठीक है. But still he want to pursue her dream as an entrepreneur. अब इनके करियर जो था, इनके करियर के मतलब करियर इतना अच्छा होने के बाद, इतनी अच्छी सैलरी होने के बाद भी क्यों ये एंटरप्रेन्योर बनना चाहती थी? तो उसका 2 रीजन था. शी लव्स फॉर मेकअप, मतलब इनको मेकअप करना बहुत पसंद था. एंड द सेकेंड थिंग दैट शी नोज अबाउट द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पोटेंशियल उनको पता था कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का कितना ज्यादा हाई है. सो बेसिकली शी वांट टू एक्सप्लोर दैट एरिया, उनको उस एरिया को एक्सप्लोर करना था, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को. इसी वजह से शी स्टार्टेड बेसिकली, शी क्विट फ्रॉम दैट जॉब. अपने इतने अच्छे करियर, अपने इतने अच्छे जॉब को इन्होंने छोड़ दिया. लेट मी टेल यू अबाउट हर बैकग्राउंड. एवन शी हेल्स फ्रॉम अ गुजराती फैमिली. ये कौन सी फैमिली से आती है? गुजराती फैमिली से आती है. ठीक है. तो इनकी फैमिली जो थी ये पूरी की पूरी बिजनेस में इन्वॉल्व थी. ऑल द टाइम शी लिसन अबाउट द थिंग्स. बहुत कम एज से ही इनके माइंड में वो बिजनेस की चीजें आ गई थी, बिकॉज इनके घर में आसपास सिर्फ स्टॉक मार्केट के बारे में, यही सब चीजों के बारे में बात होता था. तो बचपन से ही वो सारी चीजों को तो ये सुनते आ ही रही थी. उसके बाद जब इन्होंने, ये क्या हुआ कि मतलब ये एक बार ना कहीं इंटरनेशनल मार्केट, मतलब कहीं बाहर गई, फॉरेन प्लेस पर गई. वहां पर इन्होंने बहुत सारे ब्रांड को देखा, मेकअप ब्रांड्स को, जो इंडिया में अवेलेबल नहीं था. और इंडिया में उस समय कौन कौन से ब्रांड्स थे? तो इंडिया में एक बेटर ब्रांड में लैक्मे जो था, दैट वाज वेरी मच रिनाउंड. बट टुडे वी आर एबल टू सी देयर आर सो मेनी ब्रांड्स एज वेल. मेबेलिन, फेसेस कैनेडा, वी आर एबल टू सी रेवलॉन. देयर आर सो मेनी मेकअप के बहुत सारे आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे जो इंटरनेशनल ब्रांड है. बट अर्लियर दैट वाज नॉट लाइक दैट. इवन फॉर परचेजिंग सम ऑफ द ब्रांडेड प्रोडक्ट वी हैव टू मूव टुवर्ड द particular mall. हमें मॉल जाना पड़ता था खरीदने के लिए. So Falguni Nayar, when she saw such kind of brand and options which is present in the market, she was very surprised that why I am not able to get all these brand in India.
right? So because of this reason, her mind is basically saying that please start something related with the online platform. And at that time, the online platform was in the initial stage. ठीक है, 2012 में इसकी शुरुआत हुई और उस समय लगभग इनिशियल स्टेज में आपका ऑनलाइन चीजें चल रही थी, क्योंकि उस समय इंटरनेट बहुत महंगा था, हम यूज नहीं करते थे, बट इनिशियल स्टेज में, डेवलपमेंट स्टेज में था. तो शी अंडरस्टैंड द पोटेंशियल ऑफ इट and then after that she started working, या फिर she basically announced the Nykaa in 2012. Earlier when she started this work, या ऑनलाइन का जब इन्होंने काम शुरू किया, उस समय पर इन्होंने सिर्फ फैशन यानी सिर्फ मेकअप से रिलेटेड प्रोडक्ट को ही ये सिर्फ सेल करती थी. ओनली मेकअप रिलेटेड प्रोडक्ट्स आर सोल्ड इन दिस Nykaa प्लेटफॉर्म. और इसमें इन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स को इंक्लूड कर लिया, उन सारे ब्रांड को भी जो इजीली अवेलेबल नहीं थे मार्केट में, या तो जिनके लिए आपको मॉल जाना पड़ता था. तो इन्होंने क्या किया, फाइनली उन सारे प्रोडक्ट्स को भी इंक्लूड कर लिया, मेकअप ब्रांड, मेकअप प्रोडक्ट्स को. बट नाउअडेज वी आर एबल टू सी दे हैव अ डाइवर्सिफिकेशन इन देयर प्रोडक्ट लाइन. अब ये सिर्फ मेकअप के प्रोडक्ट को नहीं बेचते हैं, नाउ दे आर सेलिंग द एसेसरीज, दे हैव ज्वेलरी ऑप्शन, दे हैव डिजाइनर क्लोथ्स ऑप्शन. तो ये वो सब अब बहुत सारे प्रोडक्ट्स को सेल करना शुरू कर दिया है. बट यस, they are not selling the product like the Flipkart and Amazon yet. They are not doing such kind of thing. But yes, अब यहाँ पर अब लोग क्यों इनके ब्रांड पे भरोसा करेंगे, ठीक है? So earlier they started providing so many sales promotion technique they used. मतलब बहुत ज्यादा ऑफर प्राइस के साथ they started selling the product. Once the people are able to understand that whatever product we are getting, that is a authenticated product, कोई भी नकली pirated product नहीं मिल रहा है, then slowly gradually people started trusting on Nykaa. ठीक है? So I guess उसके बाद धीरे धीरे मीन्स दे एंड व्हाट शी डिड for the more knowledge and for more exploring the things, for setting her mind, even she basically take the strength from the entrepreneurial giant like Roni Screwvala of UTV and Ajay Bijli of PVR Cinemas. उन लोगों से भी इन्होंने इंस्पिरेशन स्टोरी को समझा, सुना, मतलब इनको अपने दिमाग में रखा, स्ट्रेंथ की तरह दैट स्टोरीज वर्क फॉर हर. ठीक है? एंड शी बेसिकली एक्सपीरियंस, मैंने तो बताया ही था आपको कि बहुत सारे मल्टी ब्रांड्स स्टोर्स इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट में देखा. फिर शी वांट टू रेप्लिकेट दैट इन इंडिया, शी वांट टू गिव ऑल दोस फैसिलिटीज इन इंडिया. दैट्स व्हाई शी स्टार्टेड दिस Nykaa, दिस फैशन रिलेटेड प्लेटफॉर्म. ठीक है? So she also stresses on the need for the women to come out of their shells and confident about handling both professional and personal life. She said that beauty is something which is helpful for increasing the confidence among women, right? Women jab makeup karti to they are feeling more confident. Her beauty is something which is help her to become more confident, and this is the basically message from the Falguni Nayar to the women, that don't be in your shell, don't be in your house, but confidently try to handle your professional and personal life. ठीक है? So for a strong determination and for women empowerment, even she started doing work and campaigning. ठीक है? And she has so many products nowadays which we are able to see, like they have, that is a e-commerce platform or website. So they have so many products like Kaya Skin Clinic, they have the L'Oreal Paris, it's L'Oreal Paris, Lakme, Canada, what I told you, there are so many brands she is selling. Nowadays, she have more than 35,000 products. So I guess this point is clear to all of you. These points are clear to all of you, how the story was started, how she left her proper career for become an entrepreneur. See, I just want to know from you all, this question is arise from so many classes, that ma'am, why all the entrepreneurs are from the IIMs and IIT? Do you have answer of this? Any one of you? मैम जरूरी नहीं कि IIM में और IIT के सही हो. ओला का किया हो, चाहे मैंने कवर किया हो चाहे उसके बारे में, चाहे मीशो के बारे में, या फिर चाहे मैम ये पॉसिबली कोइंसिडेंस हो सकता है, बट देखा जाए एंटरप्रेन्योर जायंट्स जो इंडिया में है वो मैक्सिमम तो
है ही नहीं IMES. in entrepreneurship, right? See, we have time right now. We are able to complete some of the topic of the types of entrepreneurship as well. And yes, we are going to discuss about the failure story as well. And let me tell you, जितने भी ये जो ओला है, भावेश अग्रवाल, when he started this company Ola, so earlier the story was like that he failed in the earlier business. ठीक है, पहले वाले बिजनेस में ही फेल्ड एंड आफ्टर दैट ही स्टार्टेड दिस ओला. सो सम ऑफ द स्टोरीज आर द सक्सेस स्टोरी का बैकग्राउंड ही फेलियर से शुरू हुआ है, इसीलिए मैंने बहुत सारे फेलियर स्टोरी को इंक्लूड नहीं किया है, बट वी आर गोइंग टू बेसिकली स्टडी अबाउट द फेलियर स्टोरी एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द फेलियर. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट एज वेल. ओके, लेट्स स्टार्ट विद यस नमन. मैम कुछ जैसे मेजर जो कंपनीज रह चुकी हैं उनका डाउनफॉल का बताइएगा, जैसे HP का लैपटॉप मार्केट में अब हाँ बिल्कुल, फिर नोकिया, याहू. हाँ, नोकिया के बारे में जरूर हम लोग पढ़ेंगे. एंड व्हेन नोकिया अगेन केम, इज इट basically managed to take that market share back or not? So we are going to understand about it. So obviously there is answer no, but why, I am going to discuss about it as well. Okay, chaliye. So we were discussing about the types of entrepreneurs. So large company entrepreneurship is completed, scalable is completed. Let's start with the international entrepreneurship. Okay, so when we are talking about the international entrepreneurship, international means boundary ke bahar, that is basically beyond the boundaries, right? So international जो entrepreneurship होंगे, इस सिस्टम में जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, दे विल कंडक्ट द बिजनेस एक्टिविटीज अक्रॉस द इंडियन नेशनल बाउंड्रीज, यानी बाउंड्रीज से बाहर जाकर के दे आर डीलिंग विद द पीपल. उनके कंज्यूमर्स भी हो सकते हैं, वो आउटसाइडर्स हो, फॉरेनर्स हो. ठीक है, अब ये कैसे कर सकते हैं? या तो यहाँ से गुड्स को एक्सपोर्ट करते हो, गुड्स को एक्सपोर्ट करना यानी यहाँ से गुड्स को भेजना, ठीक है, वाया यूजिंग द डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम. ज्यादातर शिपिंग को यूज किया जाता है आपके एक्सपोर्ट के लिए. ठीक है, तो या तो वो एक्सपोर्ट करेंगे गुड्स को, या तो वो दूसरे कंट्री में सेल्स ऑफिस को ओपन कर देते हैं, जिसको हम सब्सिडियरी कंपनी या सब्सिडियरी ऑफिस भी कहते हैं. उसका कंट्रोलिंग आपके हेड ऑफिस से होता है, लेकिन वहां पर उसका एक सेल्स ऑफिस होता है जो वहां के ऑपरेशन को हैंडल करता है. तो या एंटरप्रेन्योर वहां पर एक सेल्स ऑफिस ओपन कर देंगे, या तो वो यहाँ से गुड्स को एक्सपोर्ट करेंगे. अब इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप में एंटरप्रेन्योर्स को क्या फायदा होता है? उनका सबसे बड़ा फायदा ये है कि अगर उनके गुड्स का डिमांड आपके करंट मार्केट में रिड्यूस हो गया, यानी इंडिया में अगर आपके प्रोडक्ट का डिमांड कम हो गया है, रिड्यूस हो गया है, तो ऐसे सिचुएशन में यू आर एबल टू सेल दैट प्रोडक्ट इन द फॉरेन मार्केट, क्योंकि हर एक प्रोडक्ट का PLC एक साथ नहीं डिक्लाइन होता. मतलब प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में हर एक प्रोडक्ट का डिक्लाइनिंग जो टाइम होता है सिमिलर नहीं होता है. अगर मैं रेडियो का एग्जांपल लूं तो आप लोगों को पता होगा कि इंडिया में आज भी रेडियो रूरल एरियाज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग यूज करते हैं. ट्रू और नॉट? सही बात है. सो PLC जो होता है, यानी प्रोडक्ट का जो डिमांड होगा, एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है, एक एज ऑफ द प्रोडक्ट, हर एक कंट्री में एक साथ प्रोडक्ट का डिमांड डिक्लाइन कभी नहीं होता है. तो अगर आपके कंट्री में प्रोडक्ट का डिमांड डिक्लाइन हो गया है, आप स्टार्ट कर दो उस प्रोडक्ट को सेल करना फॉरेन मार्केट में. ठीक है, सो जो इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, दे आर सेल द प्रोडक्ट इन द इंडियन मार्केट until they reach the maturity stage. This is a part of the product life cycle. PLC अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप लोगों को याद होगा, there are 4 stages. इंट्रोडक्शन है, उसके बाद ग्रोथ, एंड देन मैच्योरिटी, एंड फाइनली डिक्लाइन. ठीक है, तो ये जो 4 स्टेज है, उसमें जो मैच्योरिटी स्टेज होता है उसको हम कहते हैं स्टेबल मार्केट. जब आपका मार्केट एकदम स्टेबल हो जाता है, पीक सेल पे पहुंच जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट पे आप आ जाते हो, इसके बाद आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन पे चला जाता है, क्योंकि मार्केट में कॉम्पिटिटर सेंटर हो जाते हैं. ठीक है, तो जैसे ही आपका प्रोडक्ट मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच जाता है, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट्स को इंटरनेशनल मार्केट में सेल करना शुरू कर देते हो, क्योंकि मैच्योरिटी के बाद आप अगर पहुंचोगे तो आप डिक्लाइन पे जाओगे, और मैच्योरिटी का मतलब होता है मैक्सिमम ऑलरेडी सेल कर चुके हो मार्केट में प्रोडक्ट. ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में डिक्लाइनिंग स्टेज तक जाना बहुत ही आराम से आपका प्रोडक्ट जा सकता है. इसीलिए जो इस टाइप के जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, दे विल स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट इन द इंटरनेशनल मार्केट. वंस दे आर एबल टू टेक द मार्केट शेयर इन देयर ओन मार्केट,
इंडियन मार्केट में आराम से पूरा मार्केट शेयर कवर कर लिया, ग्रैब कर लिया, सैचुरेशन पॉइंट तक ले आए, मैक्सिमम सेल मैक्सिमम प्रॉफिट वाले सिनेरियो पर अगर हम हैं तो अब हम अपने आप को शिफ्ट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट की तरफ। तो दीज एंटरप्रेन्योर्स आर नोन एज द इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स, या फिर दीज एंटरप्रेन्योर्स आर इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योर्स और दिस सिस्टम इज इंटरनेशनल एंटरप्रेन्योरशिप। आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। क्लियर हो गया? समझ में आया? नमन, बलराम, सोनम, Yes, ma'am. Yes, शुभम, ma'am. अंकित, अमन, देखो मुझे ना बहुत सारे बच्चे, वर्षा, अमृता, श्वेता, सबको क्लियर हो गया बेटा? दिस पॉइंट? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। सो आई गेस द टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप जितना भी हम लोगों ने किया, जो भी पढ़ा, 4 टाइप हम लोगों ने किया। द फर्स्ट वन वाज द स्मॉल एंटरप्रेन्योरशिप, large entrepreneurship, scalable, and the international entrepreneurship. Anyone have any doubt? Anyone have any doubt in any of the point? What are the quality of the entrepreneurship, entrepreneurs, who are entrepreneurs? What is the meaning of entrepreneurship? Every point is clear to all of you? Yes, ma'am. And the story is clear to all of you, okay, how the passion toward the makeup that leads Falguni Nair to start a new business. That business which she is able to understand that is totally untapped. यानी वो एक ऐसा पोटेंशियल मार्केट उनको समझ आ गया था कि जो टोटली अनटैप्ड है, इसको किसी ने अभी प्रॉपरली यूज नहीं किया है. सो बाय दिस आइडिया शी स्टार्टेड बेसिकली प्रोवाइडिंग और द प्रोडक्ट्स ओवर नाइका प्लेटफॉर्म. सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. Okay, so in the next class what we are going to cover, we are going to understand about the story of Ola. See what the story is. Let me give the small description that earlier he was basically doing the travel tour and travel ki company he was started, Bhavesh Agarwal, and then he basically make the successful platform, the बोल सकते हैं कि आपका कम्यूटिंग प्लेटफॉर्म इन शॉर्ट. मतलब आप यहाँ से कार वगैरह जो है, आपको कार की सर्विस मिल रही है यहाँ पर, आपको मल्टीपल सर्विस अभी तो है, खैर ई रिक्शा, मोटर बाइक, दे हैव सो मेनी ऑप्शंस राइट नाउ. सो हाउ द स्टोरी वाज स्टार्टेड, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट इट इन द नेक्स्ट क्लास. ओला के बारे में पढ़ेंगे और बाकी के अपने टॉपिक्स को कंप्लीट करेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में. चलिए.